ओके डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ज्योग्राफी में प्रीवियस एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन का कुछ कलेक्शन देखेंगे। जिनका आवाज आ रहा हो थोड़ा म्यूट कर लें, ठीक है? बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। उसके बाद दो टॉपिक दिया गया है, उस पर हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। अरुण सर आपके साथ बने हुए हैं, ठीक है? तो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, ठीक है? और उसका थोड़ा टाइमर भी आपके साथ सेट किए गए हैं, तो स्क्रीन पर आप लोग को दिखलाई दे रहा है, हेडिंग दिखाई दे रहा है, Yes, sir. रैपिड Yes, फायर। sir. Yes, sir. सर स्टार्ट करते हैं हम, आप अपना बच्चों से इंटरेक्ट कर लीजिए, ठीक है? Yes, sir. Good afternoon, students. Good Hope you afternoon, guys sir. are really Good doing afternoon, well sir. for your health and examination. So, are you guys ready for today's session? Yes, sir. Okay. So, let's begin with today's session. In this session, we are going to discuss some questions which are crucial for your examination. And after that, we will deal with solar radiation, and we will know how solar radiation interacts with our atmosphere. Okay, and we will also deal with what is conduction, what is convection, and what is advection, and how it works in our atmosphere. Okay, so let's begin with questions. Okay, question number 1 is, which of the following highway connects Delhi and Kolkata via Mathura and Varanasi? Okay, the question is, which of the national highway connects Delhi and Kolkata via Mathura and Varanasi? Your answer is National Highway answer 6. करें. No. National Highway 6. National Highway 6. I think it's NH2. Okay. It's a factual information. I think it's NH2. Okay. Now next question is the country where drip irrigation is more effectively used. देखिए, next question is the country where drip irrigation is more effectively used. Israel. The country, yes, it's not Israel, it's Israel, है ना? Pronounce it rightly. Okay, it's Israel. ठीक है? Israel is the country where drip irrigation is more effectively used. Okay, Israel is the right answer. ठीक है? So understand first what is drip irrigation. Okay, पहले क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो पहले मतलब भी समझिए कि ड्रिप इरिगेशन है क्या. So drip irrigation is basically a type of micro irrigation system that has the potential to save water and nutrients by allowing water to drip slowly to the roots of the plant. कहने का मतलब ये है कि वाटर को कंजर्व करने का एक तरीका है ना? और इसमें पानी का खपत कम होता है. समझ रहे हैं बात? That's why drip irrigation is very useful for irrigation purpose, and Israel is using that type of irrigation. Next question is, which river in India flows in a river valley? Which river in India flows in a river valley? Sir, Narmada. Yes, नर्मदा. अब ये जब नर्मदा इज द राइट आंसर, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जो रिफ्ट वैली है आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं. इस बात को ध्यान रखिएगा, रिमाइंड करिएगा इस बात को कि रिफ्ट वैली के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ. जब वॉल्केनोस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसमें बताया था. तो आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि रिफ्ट वैली को आप दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को आंसर करें. बाय द वे, रिफ्ट वैली इज अ लो लैंड रीजन दैट फॉर्म्स वेयर अर्थ टेक्टोनिक प्लेट मूव अपार्ट. ओके, टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो उस एरिया को क्या बोल रहे हैं? रिफ्ट, है ना? तो दैट इज द रिफ्ट वैली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A narrow strip of land. Next question is, a narrow strip of land that connects two larger land masses is called. A narrow strip of. First of all, try to understand what is the demand of question. Okay. After that, try to answer. First of all, understand what is the demand of question. A narrow strip of land that connects two larger land masses is called. Sir, straight. Straight. No. Its right answer is isthmus. Okay. The right answer is isthmus. Option B is the right answer. अब आप देखिए यहाँ पर आपको परेशानी हो पा रहा होगा कि आप ये नैरो स्ट्रिप क्या है भाई। तो नैरो का मतलब तो आप समझते हो, स्ट्रिप का मतलब समझ लो। स्ट्रिप इज बेसिकली अ लॉन्ग नैरो पीस ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज का। और वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड मासेस हियर, है ना। तो इट्स बेसिकली अ लॉन्ग नैरो पीस ऑफ लैंड मासेस, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कहा जाए तो इस्थमस ऑफ पनामा, एग्जांपल क्या होगा, इस्थमस ऑफ पनामा। बट फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज isthmus. Next question is maps on large scale representing both natural and man-made features are called. Answer करें। Maps on large scale representing both natural and man-made features are called. It's basically topographic map. Right answer is topographic map. Option D is the right answer. Right answer is topographic map. Topographic is basically, आप इसको हिंदी में ऐसे समझ लीजिए, किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक विशेषताओं को टोपोग्राफिक कहा जाता है ना। और टोपोग्राफिक मैप है क्या, इट्स बेसिकली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया इज एन इक्विवेलेंट एंड इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो कि आप साउथ और नॉर्थ पोल को कनेक्ट करता है। तो दैट आर बेसिकली टोपोग्राफिक मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the angle between the magnetic meridian and geographical meridian at a place is. The angle between the magnetic meridian and the geographical meridian at a place is. ठीक है। Your answer is option A is the right answer. Declination is the right answer. Okay. Basically, this meridian thing is a kind of imaginary line. Okay. A kind of imaginary line. ये मैग्नेटिक मेरेडियन जो है, आपको बताया मैंने अभी तुरंत बताया, इट्स अ काइंड ऑफ इमेजिनरी लाइन, है ना। टोपोग्राफिक मैप के पहले इसके पहले टोपोग्राफिक मैप समझ रहे थे आप, जिसको मैंने बताया कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया, उसको क्या बोले, टोपोग्राफिक मैप बोले। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। मैग्नेटिक मेरिडियन इज बेसिकली अ इमेजिनरी लाइन, है ना, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करता है। तो योर राइट आंसर इज डेलिसिनेशिया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an irrigation project is categorized as a major project if it covers a cultivated command area of. Okay, आप आंसर करें। आपसे ये पूछा जा रहा है कि an irrigation project is categorized as a major project, है ना, if it covers a cultivated command area of, कितने एरिया को कवर करना चाहिए। And your right answer is option C. Option C is the right answer. 10,000 hectare. Above 10,000 hectare. Next question. The program of Operation Flood was
concentrated on. The program of Operation Flood was concentrated on. Please try to answer the question. Guys, please try to answer the Flood question. control. Yes, please tell me. Flood control, sir. No, no sir, milk production होगा C number. Increase. Okay. Milk production. Increasing the milk production is the right answer. Operation Flood is basically related to increase the milk production, which was launched on 13th of January 1970. Okay. 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था और बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू फेरल्स लॉ Coriolis force wind change their direction. According to Ferrel's law, wind change their direction, है ना. फेरल्स लॉ के अनुसार विंड का डायरेक्शन क्या हो जाता है, बताइए. ये क्वेश्चन बेसिकली मूवमेंट ऑफ अर्थ से जुड़ा हुआ है. वी विल डील ऑल दिस टॉपिक इन लेटर क्लासेस, बट क्वेश्चन इज फेरल्स लॉ के अनुसार विंड किस डायरेक्शन में मूव करता है. योर राइट आंसर इज टुवर्ड द राइट इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड द लेफ्ट in the southern hemisphere. Toward the left in the southern hemisphere. Option B is the right answer. Option B is the right answer. ठीक है. Option B is the right answer. If you guys have any doubt, you can ask, है ना. आप पूछ सकते हैं अगर कोई परेशानी हो रहा है क्वेश्चन को समझने में. Any doubt, if you wish to ask anything, I will answer it. Okay. Please feel free to ask a question. Now next question is, which one of the following atmospheric layer absorb ultraviolet ray of the sun? Which one of the Troposphere. following atmospheric layer The absorb stratosphere. stratosphere? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, है ना, और ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़िए, है ना. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़िए. राइट आंसर इज ओजोन स्फीयर, है ना. राइट आंसर इज ओजोन स्फीयर. ओजोन स्फीयर इज बेसिकली व्हाट, अ स्ट्रिप ऑफ ओजोन, है ना, जो कि हमारे वायुमंडल में ऊंचाई पर पाया जाता है ना. यही ओजोन क्या करता है, ये हानिकारक रेज को क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है. सो राइट आंसर इज ओजोनोस्फीयर, है ना. राइट आंसर इज ओजोनोस्फीयर. आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने बताया है आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में मैंने बता चुका है आपको कि जो है ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, आयनोस्फेयर क्या होता है, मेसोस्फेयर क्या होता है, एक्सोस्फेयर क्या होता है. अगर आप उस चीज को ध्यान से समझ रहे होंगे तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रेनेज पैटर्न developed on folded sedimentary rock is termed as. The drainage pattern developed on folded sedimentary rock is termed as, है ना. Drainage pattern developed on folded sedimentary rock is termed as. It's basically a factual question. ठीक है. Try to answer. Right answer is dendritic. Right answer is dendritic. ठीक है. Dendritic is basically a drainage pattern, है ना, which develops on folded sedimentary rock. ठीक है. So right answer is option B. Now next question. So which of the following is not a line of demarcation between two countries, है ना. इनमें से निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी रेखा है जो दो देशों के बीच में नहीं. ठीक है. प्रश्न का मतलब यही. अब आप इस चीज को ऑप्शन को देखकर उत्तर करें कि भैया कौन सा लाइन जो है दो कंट्री के बीच में नहीं आता है. सर मैगीलोक 9. कौन सा? डी नंबर सर. मैगिनॉट लाइन. ऑप्शन नंबर डी कह रहे हो? नो. ऑप्शन नंबर डी. Sir,
C ऑप्शन नंबर डी Plimsoll. इज नॉट द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए Plimsoll. इसका थोड़ा सा C or D डिस्क्रिप्शन बात समझ लो, बोलो। ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप पहले ये समझ लीजिए कि ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है डूरंड लाइन है कहाँ। डूरंड लाइन इज बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन चाइना और इंडिया के बीच में चाइना और है। इंडिया के और बीच में। मैगिनोट लाइन जो है बेसिकली फ्रांस के बॉर्डर और इटली स्विट्जरलैंड ये सब के, फ्रांस और इटली स्विट्जरलैंड कंबाइन ये यूरोप में है ना, फ्रांस और इटली स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर है। तो basically option C is the right answer. Now next question, water potential remains lowest in, water potential remains lowest in, water potential remains lowest in, please try to answer. If you don't know it's okay, but please try to answer. गलत होगा तो मैं सही करने के लिए हूँ यहाँ पर, आंसर करें। Sir, succulents, maybe. Not sure. No, option D is the right answer, halophyte. So what is halophyte is about? Halophyte है क्या? Halophyte is a salt-based tolerant plant that grows in a soil of water of high salinity, है ना? ऐसे जगह पर इसकी उत्पत्ति होती है जहाँ पर पानी कैसा हो, खारा हो, है ना? सैलिनिटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है? So option D is the right answer, halophyte. Now next question is the free living bacterium in the soil which increases the yield of rice is, the free living bacteria in the soil which increases the yield of rice, है ना? yield या yield बोलते हैं इसको, है ना? right राइजोबियम सर, ये ए इसको नंबर। क्या है सर आंसर ए आपका? सर राइजोबियम। ए ए राइजोबियम। सर ऑप्शन बी। नो फिर से ध्यान से सुनो। A free living bacterium in the soil which increases yield of rice, है ना, जो राइस के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो राइट आंसर इज एजेटोबैक्टर, है ना? एजेटोबैक्टर है क्या? एजेटोबैक्टर इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, है ना, yield, है ना? Now next question is frontal cyclone occurs characteristically in, फ्रंटल साइक्लोन कहाँ पर होता है ना? पहले तो ये समझो कि साइक्लोन क्या है, फिर ये समझो कि फ्रंटल साइक्लोन क्या है, ठीक है? आप आंसर करने का प्रयास करें, अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा यहाँ पर, so don't worry, please try to answer. ट्रॉपिकल रीजन सर। Tropical region? यस सर। No, basically it's a mid-latitudinal region. Now understand what is frontal cyclone, है ना? Frontal cyclone है क्या? Are a low pressure area which along with the anticyclone of high pressure area drives the weather over much of the earth, है ना? एक्चुअली होता क्या है, ये क्या है, लो प्रेशर एरिया है और हाई प्रेशर एरिया दोनों होता है इसमें, है ना, जो कि अर्थ के मौसम को डिसाइड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज फ्रंटल साइक्लोन। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, frontal cyclone are low pressure area which along with the anticyclone of high pressure area drives the weather over much of the earth. Right answer is option C. Next question. Yosemite is क्या है ये? Yosemite is क्या है? Try to answer. It's basically a waterfall. है ना?
योसेमाइट क्या है? इट्स बेसिकली अ वाटरफॉल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ये है कहाँ पर, है ना? क्वेश्चन आपसे यहाँ से अगर पूछना हो तो दोबारा ये रिपीट नहीं होगा। आपसे पूछा जाएगा योसेमाइट इज अ वाटरफॉल सिचुएटेड इन विच कंट्री, है ना? तो क्या आंसर करोगे, है ना? समवेयर इन, आप जब देखेंगे तो ये कहाँ है? कैलिफोर्निया में है, ठीक है? कैलिफोर्निया, यूएसए। कहाँ है? कैलिफोर्निया, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज where is the shore based steel plant located? Where is the shore based steel plant located? है ना? कहाँ पर ये, लोकेशन क्या है इसका? ठीक है, विशाखापट्टनम। यस, विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। अपना नाम बताइए। पूजा कुमारी सर। सही उत्तर देने वाले अपना नाम बताएं। हाँ हाँ, ठीक बात है, इज द राइट आंसर। विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर, वेरी गुड। इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट question is which of the following are connected by the north south corridor? Which of the following are connected by the north south corridor? है ना? अपने दिमाग में आप इंडिया का मैप रखें, है ना? श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। क्या आंसर कह रहे हो? वेरी गुड, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी इज द राइट आंसर। यू गाइज आर रियली वेरी स्मार्ट, है ना? नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर बोला गया और आपने सही उत्तर दे दिया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। Option A is the right answer. Option A is the right answer. Now next question is, so which of the following statement is correct? है ना? Which of the following statement is correct? And before reading this statement, आपको ये पता होना चाहिए महादेव हिल कहाँ है और मैकाल हिल कहाँ है, और भी हिल्स जो है कहाँ पर है ना? छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है, अरावली हिल्स कहाँ है? So try to answer. No, previous question number 68. We are dealing with, yes, we are dealing with question number 68. Try to answer. Sir, B number. Try to answer. B number. No. B number is the not right answer. Right answer is option A. Mahadev Hills are in the west of Maikal Hills, है ना? Mahadev Hills are in the west of Maikal Hills. Mahadev Hills है कहाँ पर? तो महादेव हिल्स बेसिकली इट्स सिचुएटेड इन वेस्टर्न एमपी, है ना? और मैकाल हिल कहाँ पर है? ईस्टर्न एमपी पर है ना? वेस्टर्न एमपी और ईस्टर्न एमपी। तो यहाँ पर जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप तो लिखा हुआ है महादेव हिल्स आर इन द वेस्ट ऑफ मैकाल हिल्स, तो पढ़ते के साथ दिमाग में आंसर आ जाएगा। और बाकी ऑप्शंस में आप देखेंगे एक कर्नाटका प्लेटू बेसिकली कर्नाटका में है। महादेव हिल्स समझ ही कहाँ पर है, छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ झारखंड वाले एरिया में। फिर अरावली हिल्स समवेयर इन राजस्थान, है ना? तो जब आप इंडिया का मैप देखोगे, है ना, फिजिकल मैप, तब आप वहां पर आपको क्लियर होता जाएगा, है ना? ट्राई टू ऑब्जर्व द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, वेयर इज द रिवर एंड वेयर इज द हिल्स, वेयर इज द माउंटेन, है ना? तो ये सब बात आप ऑब्जर्व करेंगे। Next question is question number 69. Which one of the following pair is not correctly matched? Which one of the following pair is not correctly matched? है ना? कौन सा पेयर जो है, क्या कह रहे हैं आप, कौन सा उत्तर है? सुमात्रा स्टॉर्म मलेशिया में नहीं है। अच्छा, कहाँ पर है? सर ये अफ्रीका में ऐसा लग रहा है या इंडोनेशिया में। अफ्रीका। आर यू एज्यूमिंग और श्योर शॉट? सर श्योर है? यस। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following resources is renewable? Question number 70. Question number 70. Which of the following resources is renewable one? है ना? सर इसमें से जो रिसोर्सेस ऑप्शन में कौन सा?
टिम्बर Yes, try to answer. Timber. Yeah, timber is basically wood, है ना? यस Timber is basically wood, लकड़ी, है ना? तो ये क्या है? Renewable है. Uranium, coal, natural gas. Once you excavated all those things, uranium, coal and natural gas, इसका जब प्रोडक्शन हो गया तो ये बहुत बरसों के बाद बनता है. And they are not renewable in nature. So option C is the right answer. Timber would be the right answer for question 70. Timber basically wood, है ना? लकड़ी. So this is the end of the question answer session. Now we will continue with some topics. डाउट है पूछ लीजिए किसी क्वेश्चन में. Yes, if there students, if you guys have any doubt in any questions, please tell me. Any doubt? सर सुमात्रा स्टॉर्म के बारे में, हम सुमात्रा स्टॉर्म इंडोनेशिया में से हम पढ़े थे कहीं. So, Google it out. It's a factual question. Okay, it's a factual question. Google it out. ठीक है? If there is any problem in concept, I am ready to deal it. ठीक है? तो यहाँ तो Basically a factual question and option D. मलेशिया दिया हुआ इसीलिए तो मैच नहीं कर रहा है. इंडोनेशिया बोल रहा है वो. हाँ. नॉट करेक्टली मैच. यहाँ पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच. ऊपर आप जो पढ़ते हैं वहाँ नॉट देखिए, है ना? अच्छा चलिए कोई बात नहीं. और किसी में कोई डाउट नहीं है.